Okay, so now we are going to start a mock interview for Rajesh Kumar, and this mock is for the post of management training in BSNL through internal promotion. Okay. So, Mr. Rajesh, first of all, tell us about yourself. So my name is Rajesh Kumar Shakewar. I am belong to Agra, Uttar Pradesh. My mother is homemaker and my father is retired district information officer from Uttar Pradesh government. I have one younger sister as well as one younger brother. I have completed schooling from Jhansi and Agra. After that, I have completed engineering in electronic instrumentation engineering from IIT Royal University Bareilly. After that, I have completed MTech in electronic communication from NIT Kurukshetra. After that, I got opportunity to join BSNL. I have lots of experience in BSNL, approximately 15 years. Presently, I am working in BharatNet sections. That's it. So, right now you are posted at what location? Sir, I am posted at Agra in Uttar Pradesh West. Okay. So, during your 15 years journey with BSNL, Yes, sir. how do you rate your job? Sir, out of 10, sir. Yeah, you can. Maybe 7, 7.5, sir. Okay. Yes, sir. So, why are you giving the 7.5 rating? On what factors? Sir, I don't know, sir. You gave marks, but you don't know why did you give marks? Sir, Okay. I can't prepare for this question, sir. So while working with BSNL, did you prepare for some any other exam also? Sir, at present, not, sir. Okay. Earlier, Earlier, initially, I will prepare for UPPCS, but many years ago, sir. okay. Yes. So now, what is your long-term career objective? Sir, my long-term objective is that I want to see the BSNL in top 5, but in top competitive in top operator in India or top service provider in India, sir. Okay. So right now, Yes, sir. where do you see BSNL? What challenges Yes, sir. BSNL has to cross Yes. to make it among top 5 operators? Yes, sir. So What there are are some challenges you observed? so many challenges that BNS is lag behind the technology. Most of the private operators are moving to 5G network, but BSNL is still trying to 4G network. The private operators is not bound to take the technology, not bound to take the technology which is made in India. But BSNL have this foundation that use only BSNL only Indian make in India products. So we have late in 4G network, or we can say that we are late to provide the services of 4G. After making the 4G telecom equipments by Tejas, this is possible to supply the 4G equipments in BSNL now by TCS. And the lack of communication between the staff. Lack of communication between staff, मतलब आपस में communication नहीं है? कम्युनिकेशन का इशू है और जैसे सर कैन आई टॉक इन हिंदी ऑल्सो? यस यस। जैसे सर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आपका गवर्नमेंट के ऊपर से आती है तो उसको नीचे स्तर पर जो लोग हैं
वहां प्रॉपर नहीं पहुंच पाती और वो ये सोचते हैं कि ऊपर वाले तो इसी तरह बोलते रहते हैं और उसके लिए डेडिकेटेड नहीं होते। जैसे एक प्राइवेट के अंदर एक टर्म होता है सर कि बॉस इज ऑलवेज राइट and we follow the instructions given by the boss and we implement the policies received from higher officers. But in BSNL, this is very lack of communication in between the subordinates as well as in higher authorities. Okay, means people are not responsible towards their duties. Yes, sir. So People it are means not responsible towards their duties as well as towards the public. If one person comes to the office and saying that where I go for to book my new connection, then he say go where. If there is no person, then no solution received, no proper solution so, received to that you person. have observed these things. What Yes, you sir. have done to improve the service of BSNL during your tenure? सर मैं कोशिश करूंगा कि पहले तो सबसे पहले कस्टमर का सबसे बड़ा एम होता है कि उसकी बात सुनी जाए। अगर कस्टमर की बात नहीं सुनी जाती तो एनओड होकर सबसे पहले ही चला जाता। सर्विस तो बात की चीज है सर, सबसे पहले होता है कि मतलब उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से सम्मान मिले। इसके लिए सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर, कि मतलब कोई भी आता है तो ये नहीं है कि आप इधर जाओ या उधर जाओ, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म या सिंगल विंडो होनी चाहिए, वहीं पर उसको अटेंड करना चाहिए। और हमें अपनी सर्विसेज जैसे कोई कहते हैं कि TNF एरिया है, तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकली नॉट फिजिबल एरिया हमेशा लाइफ टाइम बना रहेगा। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और कुछ टाइम या कुछ प्लानिंग करके उस एरिया को उनके कनेक्शंस को प्रोवाइड कराना है, क्योंकि तो बताइए इन सब या ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो, हाँ सर। इनके सॉल्यूशन के लिए आपने कुछ किया? जैसे आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपने बाकी से क्या अलग किया? सर मैं अभी हायर अथॉरिटीज में तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश अपने पर्टिकुलर सेक्शन में कोशिश की है वो मच मोर सफिशिएंट है। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ। क्या कोशिश की आपने? कुछ अचीवमेंट्स बताइए। सर कभी भी कोई कस्टमर मेरे से अगर मिल के जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो मायूस होके जाएगा। मैंने कभी भी ये नहीं कोशिश करी है कि कोई बंदा आया हुआ है और उसको प्रॉब्लम है तो उसको मतलब वहां किसी को अपने साथ के किसी बंदे को पहुंचाना अपने स्टाफ को और उसका शॉर्ट आउट करवाना है। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है उसको वहीं पर बैठना है, पानी पिलाना है और आपका उसका सॉल्यूशन निकलवाना है। मैनी केसेस आर देयर सर। ओके अच्छा, आपकी जॉब के टाइम पे आपको कभी कोई अप्रिसिएशन लेटर ऐसा कुछ मिला है? Sir, I have got 3 appreciation letter, 2 appreciation letters from GM Faridabad and 1 appreciation letter received from DGM Operation Faridabad. तो किस कारण से मिले हैं आपको वो? These appreciations are received due to completion of 7th phase 7 project, that is installation of new BTS, ZTE BTS, as well as swapping the sites of swapping the Ericsson and and Nokia sites by ZTE BTS. I've got it. आपको कभी कोई पेनलाइज भी किया, पनिशमेंट मिला है किसी भी कारण से? No sir, punishment नहीं मिला अभी तक। कोई वार्निंग? सर वार्निंग नहीं मिली, वार्निंग वगैरह कोई नहीं मिली है सर मुझे। ओके थोड़ा सा यूनियन को क्या होता है सर, यूनियन क्या करती है कि अपना बात सिद्ध करने के लिए आप पे दबाव बनाने की कोशिश करती है। जैसे एक बार एक हैंडीकैप पर्सन था, लोग चाहते थे यूनियन वाले कि उनकी अटेंडेंस लगाते रहने दी जाए उनके बिना आए हुए। अब मेरा ये कहना था कि वो बंदा घर पे है, क्या कर रहा है, कम से कम वीकली आ जाए या कोई अपनी जगह कोई बंदा डिप्यूट कर दे जिससे वो काम कर सके। तो लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने मेरा नेगेटिव फीडबैक जीएम सर को दे दिया। जीएम सर ने वापस मुझे पलवल मतलब रूरल में पोस्ट कर दिया। तो सर ये मेरे अंदर से गवाही नहीं देती आत्मा मेरी कि बहुत ज्यादा गलत किया जाए। इसके लिए एक बार थोड़ा सा ये हुआ था। जिन जीएम सर ने मुझे अप्रिसिएशन दिया, बाद में उन्हीं जीएम सर ने मुझे अप्रिसिएशन भी दिए हैं। ओके अच्छा, आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स से टच में हैं अभी? सर नॉट मच मोर।
तो आप कौन कौन सी आपकी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स, जो आप हमें बताना चाहेंगे, जिनसे आपके प्रमोशन में मतलब इम्पोर्टेंस हो सकती है उनकी? सर एक्चुअली में I am working in the maximum. I am working in the field and sections. Now I feel that the planning section is good for me. And presently I am working in BharatNet. This is good for me. So you want to continue there? Yes, sir. Okay. CM section also, sir. Mobile section also. ठीक है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, Yes, sir. तो आपको उसके बारे में कुछ अवेयरनेस है? Yes, sir. Awareness है। बताइए। मेनली सर गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए क्या किया है कि जो 4G का एक रोल आउट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है कि किसी भी हालत में 4G हमारा लॉन्च होना है, और मतलब रूरल एरियाज में और अप टू जहां जहां भी बेस्ट पॉसिबल है लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जानी है। लोगों का सेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ऊंचा रहे, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी जानी है। इसके लिए भारत नेट जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है विलेज लेवल एंड ग्राम पंचायत लेवल पर सब। ठीक है, कैलाश सर, you can continue. Hello Rajesh, am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay. So right now you are currently working as a GTO, right? Sir, I am presently working as a SDE, sir. Okay. SDE you are working currently. So why you want to go for this management training role? Any specific reason? Sir, this is for required for my progression, as well as I want to also use my skills to develop the BSNL also. Right now you told me that I was listening to your questions. Sir, in next 5 years I want to see BSNL at the one of the top service provider, right? So did you Yes. have any prototype for that? How you What? will do it? What, sir? Do you have some idea for that, how you will be able to achieve it? Sir, there are so many reasons why I feel that actually क्या है सर, गवर्नमेंट का भी अप्रोच है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इम्प्रूवमेंट करे, तो उसीलिए उन्होंने भी 4G का हमारे को लाइसेंस दिया है बीएसएनएल को, और मंत्री जी ने मीटिंग में बोला भी है कि 5G भी बहुत जल्दी ही हम प्रोवाइड करेंगे बीएसएनएल को। That I'm not asking what is your planning, what do you have thought, because you told that you want to see next 5 years. What as an individual you can contribute? I'm asking that. Sir, I am trying to motivate the team members, increase CM sales, CFA sales, EB sales, and maximize the TIPs to give the FTTH connections to all the sections. The future. Are you implementing these all things right now? Sir, presently I am working in BharatNet section. No, you told me. No, I am trying. That's why I asked. I'm sorry, I will try, sir. कोशिश करूंगा सर मैं। Fine. Okay, Yes. fine. Yeah. Okay, now tell me what skills and experience do you have that would make you a good fit for the management training position? What, sir? What skills and experience do you have that would make you a good fit for the management training position? Can you tell me? सर मैंने ना सर कई अच्छे मतलब काफी अच्छे लोगों के साथ काम किया है, और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो प्रेजेंट में हमारे जीएम सर हैं इसरार अहमद जी, आगरा में। Okay. उनका सर मतलब डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन है, और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है वो डिपार्टमेंट के लिए, और ये पॉजिटिविटी मुझे एनकरेज करती है डिपार्टमेंट के लिए। और भी कोई लोग मतलब जो भी आपको अच्छा चीज मिले उसको ग्रैस्प करना चाहिए सर, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप भी जहां पर अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने डिपार्टमेंट में, और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए और आगे इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए सर।
Okay, so since currently you are working in the BSNL, right? So right Yes, sir. now your role is SDE and now you are planning to go for MT. So do you Yes, have sir. any idea about what are the responsibility of one MT profile? Do you have any idea about that? Sir, I have ideas, some ideas, sir. Can you explain please? सर एमटी के अंदर मेनली क्या है कि मतलब हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि एज ए ऑपरेशनल एरिया हेड बने आप। Okay, तो पूरा अप्रोक्सीमेटली लगभग पूरे जिले को हैंडल करना पड़ेगा सर। okay, उसमें आपको सीएम सेल्स भी देखना है, सीएफए सेल्स भी देखनी है, कोऑर्डिनेशन भी करना है आपको अदर अथॉरिटीज से, और आपका okay, मोबाइल टावर्स मेंटेन करने हैं, okay, एफटीटीएच कनेक्शंस प्रोवाइड्स कराने हैं, इमरजेंसी कंडीशंस आते हैं जैसे आपका इलेक्शन है, okay, बोर्ड एग्जाम है, तो उस टाइम पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, मोटिवेट करना okay. है लोगों को डिपार्टमेंट के प्रति सर्विसेज लें, जिससे कि उन मतलब सर्विस हमारे डिपार्टमेंट भी प्रोग्रेस करे और सर उनको बेस्ट सर्विसेज मिल सके। Okay. Now tell me, suppose for tomorrow, for future, you are employed as a MT in BSNL, right? यस सर। Okay. So what kind of challenges you believe that you will be facing? So there are so many challenges that other agencies cut the cable frequently. Government also issued various guidelines to not to coordinate other agencies, but they not follow the guidelines as well. As this is the major challenge we face. We face. Okay, let us suppose tomorrow you are deployed as a MT, right? Yes, sir. Okay. So you are going to launch some program. So how you will handle the demand of that program along with your current job responsibility? Yes, sir. Program, sir. Yeah. I can't understand what you say, sir. Let us suppose for tomorrow you are assigned with the profile of management trainee, right? Yes, sir. So BSNL has decided to launch one separate vertical and you are provided with the responsibility for that, right? Yes, And you yes. are having a team of 10 to 15 people, okay? Yes, How you yes, sir. will plan and schedule the program? Can you give me some idea? Sir, I first of all I called to our team and ask मतलब कौन बंदा क्या क्या काम बेटर कर सकता है सर, उसके अकॉर्डिंग हम गोल को डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। साथ में ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में और उनके ऊपर छोड़ दिया, मतलब मुझे उसको इंडिविजुअली देखना भी पड़ेगा सर साथ में कि कौन कितना क्या कर रहा है, जो बंदा पीछे रह रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा, और साथ में मुझे कंट्रीब्यूशन फुली कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा अपने तरफ से। ओके, सो अभी आप एसडी पे कितने टाइम से वर्क कर रहे हो? कितना ड्यूरेशन आपको हो गया एसडी? अप्रोक्सीमेट 4.5 years। तो जो भी आपने एसडी पे अपना ईयर स्पेंड करा है, तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एमटी पोजीशन के लिए? सर एक्चुअल जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो मोबाइल सेक्शन में, प्लानिंग सेक्शन में, मटेरियल मैनेजमेंट सेक्शन में, एचआरडी सेक्शन में और भारतनेट सेक्शन में है। तो ये मेनली जो सेक्शंस है सर, उससे पहले तो मैंने ज्यादातर फील्ड में काम किया है, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है सर वो एमटी के तौर पे बहुत ज्यादा मेरे को हेल्पफुल रहेगा सर। कैसे? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, हाउ कैन यू टेक सम एग्जांपल? सर इस तरह से कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन वगैरह देखना, वो मेरा एचआरडी का जो एक्सपोजर है उससे क्लियर होगा। प्लानिंग सेक्शन में आपका मतलब किस तरह से कैसे क्या प्लान करना है, कहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, कैसे क्या करना है, वो प्लानिंग से मेरा एक्सपोजर कंप्लीट होगा सर। मटेरियल मैनेजमेंट से किस तरीके से आपको सामान अलॉट करवाना है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मटेरियल मैनेजमेंट सेक्शन से पूरा होता है सर। और भारत नेट से क्या होता है सर कि अप टू द रूट लेवल वी प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी, दिस इज द मेन रीजन व्हाई we feel that these exposures get me the chance as a manager.
ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि जब आप एसडी पे एग्जाम जब भी आप अपना एसडी पोजीशन पे सर्व कर रहे थे, तो कोई आपने ऐसी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आप अपने आप को कैसे अप टू डेट रखते थे, सो दैट आप उसको अपने वर्क पोजीशन में एम्प्लॉय कर पाए? कुछ इसके बारे में रेफरेंसेस होंगे? सर ये एसडी रहते हुए मैंने जितने भी सेक्शंस में काम किया है, मैक्सिमम केसेस में अपडेट रहने की जरूरत पड़ती थी। रीजन है कि जैसे हमें एक टेंडर करना है, ओएफसी मेंटेनेंस और नोफन का हमारा टेंडर करना है। तो अगर मान लीजिए सर हमने टेंडर कर दिया और इन बिटवीन कोई नई रूलिंग आ गई, तो उसको फॉलो करना ही करना है हमें। तो इस वजह ओके, से हमें हमेशा अपडेट रहने की जरूरत पड़ती थी, और ये एक्सपोजर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है सर। तो अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बीएसएनएल के ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट है? कुछ आपको लग रहा है कुछ इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा या नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा है? सर गवर्नमेंट ने खुद कोशिश की है कि बीएसएनएल का इम्प्रूवमेंट हो, तो लोगों में भी जागरूकता आई है और काफी कोशिश कर रहे हैं लोग कि ठीक हो। इवन सारे लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जैसे 4G नेटवर्क आएगा तो बहुत मेहनत करके हम लोग सारा सब कुछ अचीव करके दिखाएंगे सर। और मैंने देखा है सर कि जब भी फेज 7 प्रोजेक्ट मैंने अपने आंखों से देखा है और उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है कि मतलब डिपार्टमेंट के लोग कुछ भी कर सकते हैं सर, जब एज अ टीम देखो, वर्क अचीव होता है। राजेश, अभी आई गॉट योर सर वॉइस इज नॉट क्लियर। लेट मी समराइज सर प्लीज रिपीट, कर वॉइस इज देता नॉट हूँ। क्लियर। कुछ ना आपको मैं, हेलो, सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। राजेश, आई गेस आपके एंड पे कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा सर, ओके सर। हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ अब आ रही है सर। देखो यार, आपने जितने भी आंसर दिए हैं, एक तो आप बहुत एक्सपीरियंस हो, राइट? आपने चाहे पहले त्यागी सर को आंसर दिए हैं, बट कहीं ना उन आंसर में आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस झलक रहा था और उसमें बीच में फ्रस्ट्रेशन भी थी, राइट? और हम्म एक चीज ध्यान में रखना है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, तो आपके सीनियर्स भी बैठे होंगे वहां पे, समझ रहे हो हम्म बात मेरा? हम्म कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिविटी को इस तरह से नहीं पॉइंट आउट करना जितना बहुत डिटेल में आप पॉइंट आउट कर देते, राइट? क्योंकि अच्छा। अल्टीमेटली बाद में जाके तुमको उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, तुम कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे हो, ठीक है? हाँ। मैं आपका पहले सुन डिस्कशन सुन रहा, तो आप बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को बहुत आंसर में आपकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट, कि सर यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। करंटली आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो देर इज हम्म अ वे कि कैसे उनको बोलना है बेसिकली, ठीक है? आपके हम्म पास इतना एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, और कई बार आप अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं। देखो, आपका मोस्टली जो मुझे डिस्कशन लगा कि आप एक ह्यूमन वेलफेयर पर ज्यादा काम करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोगों के साथ अच्छा भी है, वो लोगों को प्रॉब्लम ना आए। बट हमेशा जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग में रहोगे, तो आपको दोनों चीजें बैलेंस रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना है और उसके जो कस्टमर है उनको भी ध्यान रखना है। तो बाइस नहीं होना इस साइड को कहीं से। कई बार हमें लगता है बातें करने में मजा आता है, ठीक है, कि भाई हाँ। मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ, मैं, मतलब मेरी ह्यूमैनिटी है, मैं बहुत अच्छा सर्व करना चाहता हूँ लोगों को। आपके लिए वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो व्हाट आई ठीक। विल डू, आई विल सेंड यू 10 to 12 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब ऐसा नहीं कि सर उसका आंसर भी भेजो, पहले आपको हम्म, क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर देखो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट आंसर आप उनका फ्रेम कर सकते हैं, फिर और मॉक इंटरव्यू लगाओ। समझ रहे हो बात, राइट? हाँ ओके। यस सर। कभी भी ना ये चीज अपने दिमाग में रखना कि नेगेटिवली बोलना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाके काम करना है। आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड विच कैन हम्म, बी डन विद द कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट्स ऑफ द ऑल द पीपल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी reshaped by only efforts of mine only, right? There are 1,000+ people who are currently working in one unit, so we हम्म, all are responsible for the failure, we all are responsible for the success। मैनिपुलेटिव वे में चीजें बोलनी, समझ रहे हो बात? यस सर यस सर। आपका देखा, आपका ऐसा बिहेवियर
शेयर होगा कि आप बहुत खुल के बातें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लेकर जाना है, ठीक है। तो आपको कुछ 8 से 10 क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, तो आप उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सोचो कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर उनके हो सकते हैं, फिर हम आपको आंसर देंगे उसके। समझ रहे हो बात यहाँ से, ठीक है। ठीक है। और ये चीजें अगले इंटरव्यू में इम्प्रूव करनी है, इज इट क्लियर, ओके राइट। तो मेरी तरफ से तो ये है राजेश, अभी बाकी त्यागी सर आपको बताएंगे, राइट। एंड थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ हाँ good राजेश afternoon. जी, एक तो जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा हाँ सर, तो वहाँ पे मतलब अपने प्रॉपर ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, ठीक है सर। ठीक है। और इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा ना हो कि आप, जैसे अभी यहाँ पे तो आप नॉर्मल उसमें बैठे हो पोज में, तो आप ऐसे हिल रहे हो आगे पीछे थोड़ा सा, हाँ सर। ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी ऐसी हैबिट वहां शो नहीं करनी है कि हाथ हिलाना या खुद हिलना इधर उधर बार बार। वहां पे नॉर्मल तरीके से आपको बैठना है, ठीक है। उसके अलावा हैप्पी मूड में रहना है कि आप मतलब काफी अपने काम से खुश हो, और चैलेंजेस हैं कुछ, मतलब शिकायतें भी हैं, बट उनको हमें एज ए टीम बीएसएनएल का पार्ट होके उनको दूर करना है, ठीक है सर। तो जैसे सर ने जो पॉइंट बताया उनको ध्यान रखना है, मतलब कि आप जो भी पॉइंट वहां बोलोगे तो एक तो लिमिटेड ही बोलना, डिटेल में नहीं जाना ज्यादा एक्सप्लेन की। और ऐसे मतलब निगेटिव उनको लगना नहीं चाहिए कि ये बीएसएनएल से परेशान है या इसके काम से, ठीक है। आप हमेशा दिखाओ कि अभी अच्छा काम चल रहा है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा बीएसएनएल में हो सकता है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और 4G आने के बाद मुझे लगता है कि बीएसएनएल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। थोड़ा सा मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनको थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जितने भी जो छोटा स्टाफ है, मतलब लोअर पोस्ट वाले, उन Yes, sir. लोगों को थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बनाना होगा हमें, ऐसे सजेशन दे सकते हो मतलब। यस सर। हाँ, तो इन मतलब कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। यस सर। और जो आपने काम किया है उसके ऊपर जनरल चीजें पूछेंगे आपके, जो आपका ये रहा है स्टोरी, जैसे वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। उसमें वो ठीक है कि भाई मैं अपने काम के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, और इसमें किसी तरीके की वो नहीं, मतलब मैं मानता, यस। ठीक है। यस सर। तो वो एग्जाम्पल जो आपने दिया था हैंडीकैप वाला, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। हैंडीकैप वाला एग्जाम कौन सा सर? एग्जाम्पल जो आपने कहा था ना, एक बंदा अटेंडेंस वाला, हाँ अच्छा, हाँ सर, हाँ। उसका एग्जाम्पल देना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बताओ कि ऐसे कई बार होता है कि लोग मतलब बिना ऑफिस आए और अटेंडेंस ऐसी लग जाए, तो वो मैं ये मतलब कोई भी इलीगल काम मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मतलब मैं पसंद नहीं करता। यस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर मतलब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, और मैं खुद हमेशा टाइम पे ऑफिस पहुंचने की कोशिश पहुंचता हूँ। यस सर। और जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमें अच्छी सैलरी मिल रही है बीएसएनएल की तरफ से, तो उसके बदले हमें पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। यस। तो ऐसे प्रेजेंट करो थोड़ा। यस। इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, हिंदी में बात करना। यस सर। स्टार्टिंग में से ही आप ज्यादा मतलब इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ना, यस सर। क्योंकि आप जहाँ पे अभी पोस्टेड भी हो वहां पे हिंदी में सब काम चलता है। सर हिंदी अधिकारी भी बना रखा था मुझे, वो थोड़ा सा है हमारे यहाँ, हिंदी को अच्छा, ज्यादा प्रमोट करते हैं। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब समझते हैं सभी लोग यस तो हिंदी में करना, इंग्लिश में गलत सलत बोलने से बेटर है। सर। ओके सर। चलो ठीक है राजेश, ओके, थैंक यू और सर। कॉन्फिडेंट रहना आराम से। हाँ सर, कुछ रिटन में मिल सकता है, मतलब मैटर पढ़ने के लिए? वो सर ने जो क्वेश्चन के लिए बोला वो भेजेंगे, फिर आप उनके आंसर प्रिपेयर करो। हाँ हाँ, वही चीज सर। हाँ ओके, ठीक है। थैंक यू सर।